Hello guys and welcome to this new video. In this video we are going to discuss the current affairs of October month, and we are going to discuss the segment of Indian polity and constitution. So जितने भी current affairs है Indian polity और constitution से related उनको हम discuss करेंगे, and this is based on the Vision IAS magazine. So this is part 1 of the video. Okay, in this we will cover few questions. So before moving ahead, there is an information that if you will subscribe to the channel and comment that I subscribed, you will get the test series of all these coaching institute in the PDF drive format. Okay, in the Google Drive format. I'll share the link with you on your email ID, but you have to subscribe to the channel and I will confirm whether you have subscribed or not. Okay, so let's move ahead. So several countries including India have successfully conducted the polls, that is the elections, during COVID-19 with safety measures. Okay, so these elections were conducted and they were not postponed, and there were reasons for not postponing them. So let us discuss those reasons one by one, but this is not important for your prelims. Okay, this is important for your mains examination if in case they ask questions on COVID-19 elections. Okay, so first of all, political risks were there, like it can disturb the level of playing field, or it can create certain problems with opposition. The second reason is the reputational risk. Okay, so for an organization that makes decision, so trust in democratic process and institutions should be maintained. Then the financial risks were also there. Okay, like the money which was invested for the same purpose could not be रिकवर्ड. ठीक है, तो ये तीन जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो पॉलिटिकल रिस्क, किससे थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है. दूसरा रेपुटेशनल रिस्क. ठीक है, और तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल रिस्क, कि जो फंड एलोकेट हुए होंगे अब उन फंड्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि वो फंड्स स्टैगनेंट रह जाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो उसकी टेक्निकलिटीज़ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ब्रॉड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. और उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क वगैरह है. ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क मीन्स कि एक्सटेंशन ऑफ टर्म हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. और लीगल रिस्क भी है कि दिस कैन बी चैलेंज्ड ऑन द सर्टन ग्राउंड इन द कोर्ट. फिर वही है कि डिले होता जाएगा. ठीक है, so rather than getting into all these things, it's better to conduct elections with precautionary measures. Okay, so this was about why we didn't postpone the elections. Now we are going to see that what were the challenges which were faced during COVID-19. So first one was the challenge of campaigning. Okay, so as you know that rallies comprise of large crowd, and this can spread the virus very quickly. Okay, the second challenge was polling stations, but in campaigning part you have to focus on the virtual rallies concept. Okay, this was the new concept, that is virtual or online rally. Then polling stations, these will be impacted as it becomes increasingly difficult to find workers and to man them, and there was a need to provide protective gear and sanitizer at large scales. For example, if the precautions have to be taken, then more polling booths had to be set up, and along with it the staff was to be given protective gears and sanitizers. Okay, so it will increase the cost. Then preparedness for electoral management bodies, because these manpower which they acquired, they had to be trained also. Okay, and suppose if you will combine these 2 points, it's okay, because ultimately they convey same thing. Then effect on turnout, because people were apprehensive and they were not willing to move out of their houses. So there was a risk that the voters turnout may go low, you can say. Okay, then impediments on transparency. So earlier, the domestic and international observer groups ensure the processes are lawful
and meet requirement for an election conducted with integrity. But in COVID-19 the situations could be different. Again, this is important from the mains point of view, not prelims. So now we are going to see that what were the broad measures which were taken. So सबसे पहले तक पॉलिटिकल कंसेंसस यानी कि आम सहमति बनाने की ज़रूरत थी कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिसीजन था। दूसरा डिसीजन है स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट्स। फॉर एग्जांपल कि क्राउड का साइज़ कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है। अगर मान लो एक जगह पर 100 लोग हैं और एक पोलिंग बूथ है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन क्रिएट 3 पोलिंग बूथ्स और उसमें फिर 33 करके लोग जो हैं वो अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ मेजर्स जो हैं वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद वोटर एजुकेशन, ठीक है, कि वोटर एजुकेशन जो है वो तो हर बार इलेक्शन का पार्ट होता ही होता है, बट पेंडेमिक में उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो फोकस करने वाली चीज़ है वो है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे को देखने हैं। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड का एग्जांपल देखते हैं। तो न्यूजीलैंड का एग्जांपल है, सबसे पहले वहाँ पर ऑनलाइन सर्विस ऑफ वोटिंग, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस थी मतलब वोटिंग की। दूसरी टेलीफोनिक वोटिंग भी हो रही थी और ऑफरिंग प्रॉक्सी वोटिंग एंड पोस्टल वोटिंग, एक्सपेंडिंग द यूज़ ऑफ मोबाइल बैलेट बॉक्सेस। ओके, सो 3-4 मेजर्स जो थे वो न्यूजीलैंड ने लिए, बट वहाँ पर ये सब इम्प्लीमेंट हो सकता है बिकॉज दे हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर पॉपुलेशन इज़ क्वाइट एजुकेटेड एंड they are well organized and their population is very less. Okay, so but in India there are challenges like population, illiteracy, etc., so this cannot be done. Plus the corrupt practices which goes on in India when the voting is offline, then even then there is a lot of corruption. So जब online होगा तो there could be a lot of corruption. Then in South Korea, other example is South Korea. Special polling booths were set up for COVID patients. Postal voting was organized. Early voting political agreements on electoral calendar were made. Like India ने भी बनाया था political consensus, ठीक है। और सर्टन मोर प्रोसीजर्स वर मेड, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन मेजर्स याद रखने हैं, ठीक है। इंडिया ने क्या क्या करना है, इंडिया के बारे में बात करते हैं। सो इंडिया में वी अलाउड कोविड पेशेंट्स ऑल्सो एंड वी एक्सटेंडेड द वोटिंग टाइम बाय 1 hour. Then the number of voters per booth was restricted to 1,000 persons so that social distancing can be maintained. Then postal ballot facility was provided wherever required. हमने ऑनलाइन वाला नहीं किया, हमने पोस्टल बैलेट वाला किया। हालांकि जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे वो हमने ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए थे। ओके, एंड देयर वर रिस्ट्रिक्शंस और डोर टू डोर कैंपेनिंग ताकि लोग कॉन्टैक्ट में ना आए एक दूसरे के और इससे वायरस को कंटेन किया जा सके, ठीक है। तो न्यूजीलैंड वाला हमने देख लिया। उसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो DGQI क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी बात हम करते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, उसको सेकंड रैंक मिला है अमंग 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज एंड थर्ड रैंक मिला है आउट ऑफ ऑल 65 मिनिस्ट्रीज ऑन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ओके, तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, ये एक तरह का सर्वे होता है। इट असेसेस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस on the implementation of central sector schemes and centrally sponsored scheme. This is important for your PT. Okay, these facts can be asked. Another important fact which I should highlight here is the implementation of centrally sponsored scheme. ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों मॉड्यूल्स में आएगा, तो इसके जो डिफरेंसेस हैं वो आप पता कर लेना, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के स्कीम्स में डिफरेंस क्या है, ये पीटी में आ सकता है। इट इज़ कंडक्टेड बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस अंडर नीति आयोग। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब इस DGQI का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो ये असेस करता है डेटा प्रिपेयर्डनेस को
मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच, और सबसे पहले उसके बाद ये इंश्योर करता है हेल्दी कंपटीशन अमंग देम एंड प्रमोट कोऑपरेटिव पीयर लर्निंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब कि अगर एक मिनिस्ट्री ने कुछ अच्छा इनिशिएटिव अडॉप्ट किया है तो दूसरी मिनिस्ट्रीज़ जो है वो भी उस अच्छे इनिशिएटिव को अडॉप्ट करे या कुछ उससे बेटर करने की कोशिश करे, ठीक है। तो इससे इम्प्रूवमेंट होती है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में, उनकी स्कीम्स जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, बिकॉज प्रॉपरली जब सर्वे किया जाता है तो चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। देन मेजर themes of DGQI include data generation, data quality, use of technology, etc. Okay, this is not that important point, but you should know कि हाँ ऐसे कुछ themes होते हैं। Okay, the above points are important. These 3 points which we have discussed, these are important for your PT. Then another important fact which I told you कि centrally sponsored scheme और center sector schemes में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। That is important. Now moving on to what is the role of data in governance. So as you know that data is becoming important day by day. So just look at the broad points. This is important for mains. Okay. So for digital economic growth it is important, and then another aspect is that it will help you to make better decisions. Okay, because अगर data होगा तो decisions भी properly लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट, किस सेक्शन को कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उन सब का जो डेटा है वो हमें हेल्प कर सकता है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में। देन द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो गवर्नमेंट कैन क्रिएट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फेडरल इनिशिएटिव्स। ओके, सो इसमें गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी है वो भी लाई जा सकती है ताकि सिटीजन्स अवेयर रहें कि क्या हो रहा है। देन सिटीजन एम्पावरमेंट। ओके, तो सिटीजन्स का एम्पावरमेंट कैसे होगा? थ्रू ई गवर्नेंस। दैट इज़ द ओनली पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। देन मूविंग ऑन टू द अदर पॉइंट दैट इट प्रिवेंट्स लीकेज। ओके, सो इट मीन्स कि अगर कोई सब्सिडी या कोई फंड जो है अलॉट होना है तो वो डायरेक्ट जो है कंज्यूमर या फिर बेनिफिशियर के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। बीच में कोई कट वगैरह नहीं लगते और ना ही बीच में कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व होता है जो कि पैसे वैसे का हेर फेर कर सकता हो, ठीक है। तो ये प्रिवेंट्स लीकेज। देन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी काम है वो जल्दी जल्दी हो सकता है, ठीक है। आपने सर्टिफिकेट अप्लाई किया एंड यू कैन रिसीव द सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑल्सो और बाय पोस्ट ऑल्सो, so you don't have to go and like stand in the long queues and wait for your turn. Okay, so ये जो points हैं these are important for mains, not for PT. अगर PT में आएगा भी तो you can easily figure out कि रोल क्या हो सकता है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट है, तो इसमें कुछ अगर PT में पूछते भी हैं तो you can choose the option yourself. Moving on to the other thing, that is what is the challenges in the data governance क्वालिटी इंडेक्स। सो सबसे पहला जो चैलेंज है इसमें वो है कलेक्शन ऑफ डेटा का, ठीक है। कि डेटा कलेक्ट कैसे किया जाए। कभी कभी देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड देयर आर अदर ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज दैट exist. Okay, another thing is political will for utilizing data in governance, because it will like require a strong political will to implement such policies, otherwise people will oppose. Then privacy concerns भी आ जाते हैं, because nobody wants their personal data to be leaked. Then funding and innovations, right? इट मीन्स कि सबसे पहले तो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि इनोवेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ओके, विच इज़ लिमिटेड अप टू सर्टेन एक्सटेंट इन इंडिया। देन मूविंग ऑन टू द अदर थिंग कि आगे हमारे पास जो है इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। सो ओपन डेटा पॉलिसी इज़ वन सच थिंग। दीज टर्म्स कैन बी आस्क्ड इन द पीटी, लाइक व्हाट इज़ ओपन डेटा पॉलिसी। सो इट मीन्स कि डेटा का शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के बीच में। सेकंड, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, दैट टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स और कंपनीज हु कैन ऑफर द सॉल्यूशंस इन डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इनोवेशन वाला जो काम है वो ईजी हो जाएगा। देन फंडिंग एंड इनोवेशन रिसर्च, अगेन दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड। देन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि ज्यूरिसडिक्शन के जो बैरियर्स हैं वो ब्रेक हो जाएं। ओके, सो द प्रपोज्ड डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड रिपोर्ट बाय क्रिस
Krishnan committee may prove a milestone in this direction. So you have to read about this committee for your PT point of view. Okay, so just do it yourself. Then also data protection and privacy regulations and guidelines as exemplified by US General Data Protection Regulation Bill is prerequisite. Okay, so ये एक इंटरनेशनल यू कैन से प्रोविजन है, बट इसका इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि पीटी में ये जो टर्म्स हैं वो पूछी जा सकती हैं। जैसे पीटी में कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो नहीं पूछेगा, लेकिन व्हाट इज़ ओपन डेटा पॉलिसी ये पूछ सकता है, ठीक है। सो इस तरह से आप याद रखिए। दूसरी चीज़ की डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसे अब यहाँ पे बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, ठीक है। सो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो it is a need of R to like efficient delivery of schemes, proactive policy revision, etc etc। ओके, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो यूटिलिटी ऑफ डेटा एंड गवर्नेंस इन इंडिया, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो UIDAI जो आधार कार्ड वगैरह बनाती है, उनके पास सारा बायोमेट्रिक डेटा और डेमोग्राफिक डिटेल्स होती हैं, ठीक है। एक तो ये हमारा इनिशिएटिव है। दूसरा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये स्कीम जो थी ये 26/11 के अटैक्स के बाद आई थी, एंड इसमें यह है कि इट वुड कलेक्ट डेटा एंड पैटर्न सच एज इमिग्रेशन एंट्री एंड एग्जिट सो दैट द मूवमेंट्स कैन बी मॉनिटर्ड, जिन पर शक हो या जो थोड़े ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब अनपार्लियामेंटरी एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी के, ठीक है। सो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सो इसका एम था कि सारे कोर्ट्स और पुलिस स्टेशंस को लिंक कर दिया जाए फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन। देन DNA डेटा बैंक्स, द DNA टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ और एप्लीकेशन बिल ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये जो बिल है दिस वाज बेसिकली टू इस्टेब्लिश रीजनल एंड नेशनल लेवल डेटा बैंक्स ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स। Then big data and associated analytics are beneficial in various areas such as traffic problems in cities, targeting healthcare delivery, efficient supply chain management, etc. Okay, so this can also be asked in the PT as the points related to digital governance. Okay, and what is the use of data in governance? Now moving on to another thing, that is Integrity Pact. कि Integrity Pact क्या होता है? So recently, Central Vigilance Commission has amended the standard operating procedure on adoption of the Integrity Pact. ठीक है? So Integrity Pact envisages a panel of independent external monitors approved for organization. IEM reviews independently and objectively whether and to what extent parties have complied with their obligation under the pact. So I don't know why have they included this Integrity Pact in the magazine. Maybe the association with the term is the only important thing. You don't need to get into details of this. Okay, even if you are skipping this, it's okay. But you should know about Central Vigilance Commission because अब वो न्यूज़ में आ गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इंटीग्रिटी पैक्ट है क्या, इससे बेसिक एसोसिएशन ही बस रिक्वायर्ड है कि क्या क्या होती हैं इसमें चीज़ें। बेसिकली इट इज़ टू प्रिवेंट द करप्ट लीगल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, हालांकि दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। So you can discuss these things, right? You can read these things, read about these things. You can take the screenshots also, but this is not important. I have just included it so that you can see it once, okay, and what are the advantages of IP, etc. Okay, so this won't be asked as far as I think, but if in case it is asked, you should able to figure out certain options. So I am just screening it once and you can take the screenshot. Okay, so this was all for this particular video, guys. In next video we will cover some more current affairs related to polity. Please subscribe to the channel and thanks for watching the video.